So here now we are continuing with the chapter aggregate demand and aggregate supply. And yesterday we have read about the equilibrium level of income and employment with the aggregate demand and aggregate supply approach. Today we are heading towards the saving and the investment approach. Means this equilibrium level where the economy is in equilibrium is read by two approaches. First one is the AD and AS approach, in which we take the help of AD and AS curves. And now we are taking the savings and investment curves, in which we will take the savings and the investment curve to get the equilibrium level. The schedule will be the same, and from that we will enact the saving and the investment. Okay. So here this is income, consumption, savings. Okay. This is 0, 100, 200, 300, 400 and 500. And consumption is 50, 100, 150, 200, 250, 300. Okay. And now from the savings we will take out as savings at Y minus C. This is minus 50, 0, 50, 100, 150 and 200. So this is a savings, and here now we are taking now investment. Investment here we have taken as the autonomous investment, which remains same because it is without the profit motive. This is the autonomous investment. We have taken it as 100 at all levels of income. Okay. So this is investment. So now here now we will take the saving and investment approach, means where savings and investment are equal. At that stage the economy will be in the stage of equilibrium. So see this here, this is equal. Okay. So this is the equilibrium stage, and at this stage the income 300, the economy is at the level of equilibrium. Okay. So here now we will represent it with the help of a diagram also. You see this. This is Y, this is saving and investment. Income is 0, 100, 200, 300, 400 and 500. Okay. Now, and this we have taken as 100, 200, 300, 400 and 500. Okay. Now see this, at 0, first of all we will plot the savings with this income. 0, this the savings are minus 50. So minus 50 will take on the negative y-axis. So here we will start the curve minus 50. At 100 this is 0. At 200 this is 50. At 300 this is 100. At 400 it is 150. At 500 this is 200. Okay. So like this way, this is the saving curve. And now investment. Investment curve will be at all levels same, autonomous. 100 is going on. 0 पर भी 100, 100 पर भी 100, 200 पर भी 100, सब लेवल पर 100 ही चला रहा है. और इस तरीके से ये हो गया हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व. ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जा रहा है, और ये सेविंग्स कर्व है जो कि 0 पर माइनस में भी था, फिर 0 भी आया, ऐसे चलता गया. एंड एट दिस स्टेज द इकोनॉमी इज इन द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम. मींस एट दिस लेवल all the people, those who want to do the work, they are getting the work. Savings are equal to investment. Please, no problem is there. Every whole of the economy is at the stage of equilibrium. This is the stage where all the aggregate demand, aggregate supplies are equal. The same it is there, but we have taken the separate approaches, as you have seen in the AD and AS also. The equilibrium level of income was 300, and over here the equilibrium level of income is also 300. So this is the savings and the investment approach for getting the equilibrium level in this chapter. So here now we are continuing with our next topic, that is the investment multiplier. After reading this equilibrium level, coming to the next topic, that is investment multiplier. So investment multiplier means that
with the increase in investment, there is how much increase in the income is known as investment multiplier. इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से हमारी इनकम में कितना अंतर आता है, उसका जो एक प्रोपोर्शन होता है उसको बोला जाता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और इस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर के से, के, और इसका जो फॉर्मूला है दैट इज k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i। डेल्टा i मींस चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड डेल्टा y मींस चेंज इन इनकम। सो इन्वेस्टमेंट के बढ़ाने से, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से हमारी इनकम में कितना चेंज आया है उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर ना। सपोज करिए अगर हमने इनकम, हमने जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है वो 10,000 से बढ़ाई है ना, और ओवरऑल जितना भी हमने एक साल में उस पैसा कमाया, सपोज करिए वो आपका 20,000 है, तो कितना आ जाएगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? 20,000 अपॉन 10,000 दैट इज 2। यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इनकम दुगनी बढ़ती है। ठीक है, तो ये है हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर k इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा i, यानी कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है ना, वो दो चीजों से प्रभावित होता है। एक है K एंड MPC, यानी कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से प्रभावित होता है, और एक उसको इफेक्ट पड़ता है MPS से। ठीक है, MPC मींस इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन में कितना चेंज आया, उसको हम बोलते हैं MPC। जिस इकोनॉमी का जितना ज्यादा MPC होता है ना, वैसे MPC 1 से कम रहता है, तो जिस इकोनॉमी का जितना ज्यादा MPC होता है वो इकोनॉमी उतनी ज्यादा ग्रो करती है, क्योंकि आप जितना पैसा खर्च करेंगे उतना ही ज्यादा इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी, और उतना ही ज्यादा लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, साथ में आपकी भी इनकम बढ़ेगी ना, क्योंकि जब लोग कमाएंगे तो आप भी कहीं ना कहीं उनसे कनेक्टेड होंगे ना। तो जिस इकोनॉमी में जितना ज्यादा पैसा लोग खर्च करते हैं वो इकोनॉमी उतना ही ज्यादा बढ़ती है, क्योंकि एक के साथ में दूसरे की इनकम जुड़ी हुई होती है, और इसीलिए K और MPC में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। हायर द MPC, हायर द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, एंड लोअर द MPC एंड लोअर इज द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। सो इसका जो एक फॉर्मूला बनता है दिस के का एक फॉर्मूला और भी है, दिस इज k इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC। और दूसरी चीज आती है K एंड MPS। MPS क्या होता है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जिस इकोनॉमी में जितना ज्यादा MPS होता है वो इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा गिरती है, यानी कि उसमें इनकम कम होगी, उससे मल्टीप्लाई की वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो जहां पर लोग ज्यादा सेविंग्स करते हैं, ज्यादा अमाउंट को सेव करते हैं, वो इकोनॉमी ग्रो नहीं करती है, यानी कि वहां की जो सेविंग्स है वो क्या रहती है, वो सेविंग्स बढ़ती है तो वहां की इनकम नहीं बढ़ती। जब लोग पैसा खर्च ही नहीं करेंगे, लोग पैसा सेव करते रहेंगे, फिक्स्ड डिपॉजिट्स पॉलिसीज ये करते रहेंगे, तो इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज की डिमांड कहाँ से आएगी? तो जिस इकोनॉमी में लोग जितना ज्यादा पैसा सेव करते हैं उतनी ही ज्यादा वो इकोनॉमी गिरती जाती है। तो यानी कि K और MPS में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और जैसे हमने एक फॉर्मूला आपको बताया K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC, और आपको ये पता है कि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है, तो एक फॉर्मूला और बन जाएगा यहाँ पर। एक तो ये हो गया K का फॉर्मूला, एक ये हो गया, और एक फॉर्मूला है K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 होता है। अब जब हमने यहाँ पे 1 माइनस MPC कर दिया तो इसको हम MPS भी लिख सकते हैं। तो दो तरीके से इसका फॉर्मूला हो गया, K इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस MPC और K इज इक्वल टू 1 अपॉन MPS। तो इस तरीके से K की वैल्यू है। और इसके बाद में हमने पढ़ना है वर्किंग ऑफ द मल्टीप्लायर, किस तरीके से हमारा जो मल्टीप्लायर प्रोसेस है वो चलता जाता है, किस तरीके से वो वर्क करता है।